I do not want kids at all. We would rather adopt animals than we would babies or have babies. Family without children is incomplete. शादी का वाहिद मकसद ये नहीं है to have children. ईयर्स से आज तक मुझे कभी भी इसके बारे में मैंने क्वेश्चन नहीं किया अपने आप को कि क्या मुझे बच्चे चाहिए हैं, क्या मुझे बच्चे नहीं चाहिए हैं। जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात चेंज होते चले गए हैं, इनफैक्ट बदतर के लिए ही चेंज होते चले गए थे, उसकी वजह से मेरे पर्सनली स्टैंस मेरे लिए यही था कि आई थिंक बेहतर यही है कि हम इस दुनिया में और बच्चे ना लेके आएँ। I do not want kids at all, but if it ever came down to it, adoption would be the way for me to go about it. लेकिन मुझे पता है कि in the near future or anywhere in my future, I do not see children because जिस तरह की ज़िंदगी मैं अपने लिए expect करती हूँ, उसमें बच्चे कहीं पे भी fit नहीं करते हैं। When I planned to get married, so it was the time I was in a right mind कि now I have to get married and I have to start my family. And family without children is incomplete. When I conceived, तो I just conceived. हमने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया था. There was no planning, and I took it as a blessing. The reason that I do not want to have children is because I reject the idea of my identity being associated to women, to motherhood alone. I reject the idea that my only contribution to this society would be my uterus. I reject the idea that having children is going to prove my worth in this world. I reject this idea. That is why I have decided to not pursue this. मेरी शादी को अभी आई थिंक 8 months होने को आ गए हैं, लेकिन ये वाला जो डिसीजन था मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट था। सो मैंने एक स्पाउस ढूंढा ही वो जो who would be on the same page as I am. So मेरे स्पाउस को भी उतने ही he is also just as child free as I am. वो हम दोनों का ही एक ही स्टैंस था, तो हम दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह किसी का भी डिसीजन चेंज करने की या कॉन्वर्सेशंस के थ्रू इस पॉइंट के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हमने तो अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं फील की हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है बच्चों के बगैर। हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय करते हैं। A successful marriage, a successful family is all about commitment. If you are committed, then nothing can, वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती आपको। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा टू स्पेंड टाइम टुगेदर और टू you have to maintain intimacy, you have to prioritize that. ठीक है ना, सिर्फ एक सिंपल कहने से आपकी इंटीमेसी मेंटेन नहीं होती, आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है। you have to do that, you have to prioritize that. I look for a partner who would be on board with it. मतलब ये बात मुझे समझ नहीं आती कि यार लेकिन बंदा तो नहीं मानेगा, या अगर बंदा नहीं माना तो इट्स ओके, इट्स हिज चॉइस। बट मैं उसको ये फोर्स करूँ कि तुमने इस बात पर आना है, या फिर वो मुझे फोर्स करे कि वो इस बात पर आना है, ये आपकी कुछ ग्राउंड वैल्यूज़ होती हैं, कुछ बेसिक वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप ये वो अलाइन नहीं कर रही हैं एक दूसरे के साथ, यू शुड नॉट बी टुगेदर। शादी का वाहिद मकसद ये नहीं है टू हैव चिल्ड्रन। शादी का मकसद क्या है? टू बी एबल टू केटर टू ईच अदर्स इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स। मैंने जितने भी चाइल्ड फ्री फोरम्स के ऊपर जाके ये वाला सवाल किया है कि क्या आपने आज तक, और इसमें मेरा ख्याल है 16 से लेकर 80s तक के लोग हैं जिनके साथ मैंने बात की है, none of them have regretted ever not having a child, but I have gone through plenty of forums of parents regretting having the child. So I would much rather regret not having the child than regretting having the child, if that makes sense. Even if I'm financially stable, I know that I would much rather spend that time and that money with me and my spouse and the rest of my family. I can use that to spoil my nieces and my nephews instead of creating 2, 3, 4 more mouths which I would have to feed. बच्चों की इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कम्प्लीट्स द सर्कल ऑफ फैमिलीहुड। हम लोगों ने शुरू से अपने बच्चों को इंक्लूड किया है, तो टू दिस एक्सटेंट it's not that we overimpose ourselves, but we always include them in our activities. I can just do anything I want to do with my kids, I don't have to look outside for companionship. हमने बच्चा पैदा किया, बड़ी यूनिक फीलिंग है, बड़ी प्रेशियस फीलिंग है यार, ये फीलिंग एक दफ़ा लाइफ में ज़रूर करनी चाहिए. यू कैन नॉट हैव अ चाइल्ड बेस्ड ऑन अ फीलिंग.
यू हैव टू वे इन कि जब आप बच्चा लेकर आ रहे हैं आप कैसा फील कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी टर्शरी। आपने उसके साथ करना क्या है, बच्चे के साथ, बच्चा जब आएगा उसके क्या चैलेंजेस हो गए, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टूवर्ड्स हिम, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट। तो ये बड़ी सुपरफिशियल सी मुझे बात लगती है जब भी मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं फीलिंग बड़ी अच्छी है, फीलिंग बड़ी अच्छी है। आई डोंट बिलीव इन ब्रिंगिंग अ चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड, इन दिस क्रूअल वर्ल्ड, जस्ट बिकॉज of a feeling that I want to have. We need people around us, but we don't necessarily need children around us to feel good. Please adopt a dog first. Because the responsibility of a dog is quite a bit. अगर आपको लग रहा है कि आप एक डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं संभाल सकते हैं तो एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी in terms of financial means, emotional means, physical means is going to be a whole lot more in comparison to this little thing which is now in your life. There are so few people जो इसको out loud admit करते हैं कि वाकई हाँ हम इसलिए बच्चे नहीं पैदा करें because we don't want to have kids. It's not that we can't, it's just that we don't want to have kids. The children don't fit in our lifestyle, they don't fit in our life at all. जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो रात को भी उठते हैं। सो हमने ना बारी लगाई होती थी कि एक घंटा मैं सो गया हूँ तो मैरियन इज़ टेकिंग केयर ऑफ द एल्डेस्ट सन। उसकी दफ़ा हमने बेसिकली सारे एक्सपीरियंसेस फर्स्ट टाइम किए हैं। तो फिर ये होता था कि मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं मैरियन को ज़्यादा टाइम सोने दूँ, मैं उसको लेके रात को जो है ना वो उसको सुलाने की कोशिश करता रहता था या उसके साथ टाइम। और फिर वो इन द मॉर्निंग इट्स लाइक दैट you are tired and then the whole day ahead you have to work and then come back and do the same exercise again. So difficult is it's very difficult, but I don't want to scare people. ठीक है ना, मतलब it's manageable. After the child is born, जो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स अ चाइल्ड जो कि उसका अपना है, वो घर से नहीं लेकर आई, उसमें जब हम देखते हैं एफर्ट्स की लैकिंग तो दैट इज़ व्हाट बर्डन्स अ वुमन, क्योंकि उसके लिए फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। उसको ऑफिस वाले ये कह के बड़ी सेक्सिस्ट पॉलिसीज़ हैं हमारे ऑफिस की भी कि वो देखते हैं लड़की को कि भाई शादीशुदा तो नहीं है, या अच्छा अगर शादी कर ली है तो उनके दिमाग में चलता रहता है कि अब तो ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, अब तो ये जॉब शायद छोड़ दे, या जॉब में इसको छुट्टियाँ चाहिए होंगी बहुत ज़्यादा बिकॉज उसको अपने बच्चे को भी देखना है। बट वहीं उसी बंदी का जो हस्बैंड होगा वो जहाँ पर जॉब कर रहा होगा उसके ऑफिस वालों को कोई टेंशन नहीं होगी कि अब बच्चा आ रहा है तो भाई इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, इस बंदे को अवेलेबल होना पड़ेगा, वी हैव टू केटर टू हिज नीड्स। Please do consider all aspects of your life before bringing another one into your own, क्योंकि फिर वही बात है, you might regret having the child and you also might regret not having the child. लेकिन बच्चा पैदा करके रिग्रेट करना जो है वो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देगा। No matter how you turn the dice, your marriage is the adventure of your life. We have young children now. My eldest son is 19. So it's not a fairy tale. Fairy tale वाली situation नहीं है। ठीक है ना? You'll have all the adventure in this relationship, but in the end, how firm you stand on the commitment with each other. That is with your wife, with your, of course, if you have children, with your children, that is matter. Your parents need to have their grandchildren with them. So वो पूरा एक mechanism है that needs to be taken care of. If couples don't want to have children, fine. But eventually I would suggest they should think about it, because you also have to carry on with the family legacy. Somebody has to. Whether you want to have kids or you don't want to have kids, एक थॉट थ्रू प्रोसेस रखें इस चीज़ को। आपको बहुत सारी चीज़ें वे इन करनी पड़ती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको ये देखना पड़ता है कि क्या आप इमोशनली स्टेबल हैं टू हैव किड्स, क्या आप फिज़िकली एंड फाइनेंशियली स्टेबल हैं टू केटर टू देयर नीड्स, क्या आपका अपना बॉन्ड इतना मजबूत है कि आप एक दूसरे से प्यार करते हुए बच्चे से प्यार कर सकते हैं।